Before Diwali vacation, we learned about C, operators, variables, input output functions, the structure of code of C language, and so many things on the basis of introduction to C programming, right? Hello, are you listening me? Yes, Hello. ma'am. Okay. Hello. હા, તો ઘણી બધી વસ્તુ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જોઈ. સીના ડેટા ટાઈપ્સ શું છે, વેરિયેબલ્સ શું છે, કોન્સ્ટન્ટ્સ કોને કહેવાશે, ઇનપુટ આઉટપુટ ફંક્શન્સ કયા કયા છે અને ઓપરેટર્સ કયા છે, એ દરેક વસ્તુ આપણે સ્ટાર્ટિંગ જે બેઝિક્સ ફંડામેન્ટલ્સ ઓફ સી છે એમાં આપણે જોઈ લીધું ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટમાં. નાવ લેટ્સ બિગિન with a new topic, new point, that is example of C languages, right? So many examples are there in C languages using all these four topics, right? So let's start with it. First of all, I will send YouTube link, YouTube channel link of our subject, so that you all of you can getting all the lectures whatever we learned before the Diwali vacation and after the Diwali vacation. Okay, just wait for a while. Just wait, huh? So here we go. This is your link of your last lecture before the Diwali vacation, right? Over here you can join my channel and getting all the video lectures whatever we have learned during the lecture session of ICP. Okay, understand? મેમ સ્ક્રીન તો શેર કરો, કઈ દેખાતું જ નથી. અરે સ્ક્રીન શેર ની ક્યાં વાત કરો છો? મેં અહીંયા ચેટમાં એક લિંક મોકલી છે બેટા. નથી આવી? આવી જ નથી મેમ. હા, નહીં. waiting નથી વાળા. આવી મેમ. અરે હા, પણ વેઇટિંગ વાળાને આવી ગઈ છે ભૂલમાં. હવે આવી? યસ મેમ. પહેલા બી આવી જશે આઈ થિંક. ઓકે, વાંધો નહીં. જો આ લિંક ઓપન કરશો ને એટલે તમારો લાસ્ટ લેક્ચર જે મેં લીધેલો કન્ડક્ટ કરેલો એનો વિડીયો આવશે. બટ એ પહેલા તમે લોકો ચેનલને લાઈક કરવી હોય તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો કે જેથી બીજા વિડીયોઝ આવે તો તમને મળી જાય. બિકોઝ કાયમ મે બી પોસિબલ છે કે હું ભૂલી પણ જાઉં તમને લિંક સેન્ડ કરવાનું, પણ મેં વિડીયો ત્યાં અપલોડ કર્યા હશે તો તમને ડિરેક્ટલી મળી જશે. ઓકે, લેટ્સ સ્ટાર્ટ with our new topic, introduction to examples. Okay, so આપણે દરેક મોટા ભાગના એક્ઝામ્પલ લઈ લીધા છે, શીખી લીધા છે. લાઈક એક સેન્ટેન્સ પ્રિન્ટ કરવું હોય તો વોટ વી આર ગોઈંગ થ્રુ, રાઈટ? તો સૌથી પહેલા આપણે વન બાય વન એક એક્ઝામ્પલ જ જોઈ લઈશું એટલે તમને ઇઝીલી ખ્યાલ આવી જશે. હું સ્ક્રીન શેર કરું છું, જસ્ટ વેઇટ ફોર અ વાઇલ. આઈ થિંક સિલેબસનું આપણું ફર્સ્ટ ચેપ્ટર જે છે એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. ઓકે, અત્યાર સુધી જેટલું ભણ્યા એમાં કોઈને ક્વેરી છે?
हेलो। यस मैम। क्वेरी। नो क्वेरी। वाओ दैट्स ग्रेट। अगर कोई क्वेरी नहीं बीजाने बीजाने હોય તો ખબર નહીં હો। अच्छा हाँ चलो कोई मैंने एक ऐसे व्हाट डू यू मीन बाय टोकन्स कोई बता सकता है क्या है टोकन? हेलो। टोकन क्या है कोई बोल सकता है क्या? एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम। Element of program we can say like that, but token is some kind of different nearer to answer, but कोई अलग और आंसर हो सकता है। identifier, keyword, constants। या वी कैन से लाइक दैट कि जो भी हमारा छोटे से छोटा कैरेक्टर होगा सी लैंग्वेज का उसको अपन टोकन बोल सकते हैं। यूनिट ऑफ अ कोड विच हैव सम मीनिंग बोल सकते हैं हम ऐसा। टोकन નો મતલબ શું થશે કે ભાઈ એક નાનું અમસ્તું યુનિટ કે જેનો કોઈ પર્ટિક્યુલર મીનિંગ હોય જેમ કે આપણે લખીએ છીએ ઇન્ટીજર તો ઇન્ટીજર ને ટોકન કરી શકીશું। આઈએનટી લખું છું હું તો આઈએનટી નો મતલબ થશે કે ભાઈ ઇન્ટીજર વેલ્યુ। સમજ પડે છે? ચલો એક સ્ક્રીન શેર કરું એટલે તમને થોડું ઇઝીલી ખબર પડે। વ્હાઇટ બોર્ડ દેખાયું? हेलो। Yes, ma'am. ओके जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। अगर बीच में कोई आता है और मुझे पता नहीं चलेगा तो आप मुझे बता देना कि किसी को मीटिंग में इन करना है या नहीं। सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंटीजर a, b, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीजर लिखा उसका क्या मीनिंग हो सकता है कि भाई a and b have an integer value, right? We can say like that। और a कॉमा b जो है उसका मतलब होगा we have declared a and b as a variable। Understand? बोल सकते हैं हम ऐसा। तो देखो ये जो पूरी लाइन है ये पूरी जो लाइन मैंने लिखी है दिस लाइन हैव पर्टिकुलर मीनिंग। क्या मीनिंग है उसका हम देखते हैं कि भाई ए एंड बी हमने जो लिया हुआ है उसका जो भी वैल्यू हम लेंगे जो कोई भी वैल्यू यूजर से लेंगे या तो फिर सिस्टम में ही डाल देंगे तो वो पर्टिकुलर जो भी वैल्यू है इट शुड बी एन इंटीजर वैल्यू ओनली। ठीक है तो इसको अपन बोल सकते हैं टोकन्स। कौन कौन से टोकन हुए हैं वो हम देखते हैं। दैट वी हैव हियर we have 3 tokens, 3 or we can say 4 tokens। सेमीकोलन भी तो वन काइंड ऑफ टोकन हुआ। सेमीकोलन का मतलब होता है प्रोग्राम का एंडिंग। दैट इज फर्स्ट वन इज इंटीजर, ठीक है। सेकेंड इज ए, थर्ड इज ई एंड फोर्थ इज सेमीकोलन। अंडरस्टेंड? ભઈલાઓ કોલેજ નથી ચાલુ થઈ અને જેના પર માઇક ઓન છે એ બંધ કરી દેજો। ચલો ખ્યાલ આવ્યો કે કયા કયા 4 ટોકન્સ અવેલેબલ છે? રિઝર્વ માં નથી, રિઝર્વ નથી પાડ્યું। મેમ તમે બંધ કરો, મેમ તમે બંધ કરજો। આ કાંટો ચાલતો હોય કે વન છે એ નહીં
ચલો ખ્યાલ આવ્યો કે ઇન્ટીજર a, b લખ્યું છે તો એની અંદર કઈ કઈ જાતના ટોકન્સ આવી શકે છે, કયા કયા ટોકન્સ હોઈ શકે છે? હેલો, સમજ પડી? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is known as a token. Definition we could define like this: token is a small unit of a code which have some kind of meaning. Okay, બોલ सकते हैं हम ऐसा, કહી શકીએ ને આપણે એવું कि भाई टोकन નો मतलब શું થાય છે? टोकन एक नानो अमस्तु यूनिट होगा, छोटा सा यूनिट होगा अपने कोड का, जिसका पर्टिकुलर कोई मीनिंग हो सकता है. जैसे हमने लिखा है इंटीजर, INT लिखा है, तो INT का मतलब होगा कि जो भी उसके बाद जो वैल्यू, जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, वो वेरिएबल की वैल्यू जो है दैट शुड बी एन इंटीजर वैल्यू. अगर मैं लिख रही हूँ कैरेक्टर A और वी कैन से कैरेक्टर CH, अगर यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कैर CH, अगर मैंने ये लिखा है तो वी कैन से दैट CH हैव अ कैरेक्टर वैल्यू ओनली. अंडरस्टैंड? यू बेटर टू बी अंडरस्टैंड, बिकॉज ये मैंने तीसरी चौथी बार समझाया है कि टोकन क्या है. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू आवर फर्स्ट प्रोग्राम. ठीक है, लैब में हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स देख लिए, लेकिन हम वन बाय वन वापस से प्रोग्राम्स पे जाते हैं. ठीक है, इससे आपको अच्छे से पता चलेगा कि क्या हो सकता है. अगर मुझे पर्टिकुलर एक लाइन को प्रिंट करना है, वन सेंटेंस आई वांट टू प्रिंट, देन व्हाट शुड आई डू? मैं क्या करूंगी? सिंपली प्रिंटफ में जाके पर्टिकुलर जो भी सेंटेंस मुझे डालना है वो मैं डाल दूंगी. लेट्स सी, अगर मुझे लिखना है हाय दिस इज हेमांगिनी एंड दिस इज माय चैनल आई लर्निंग, वेलकम टू माय चैनल. ठीक है, अगर मुझे ये सेंटेंस लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? लेट्स स्टार्ट विद इट. दैट इज, सबसे पहला सेंटेंस क्या आएगा यहाँ पर? अगर हम लोग कोड चालू कर रहे हैं तो हमारा कोड बिगिन कहाँ से होगा? कोई बोल सकता है? भंडेरी कहाँ गयो? हेलो, Studio.h थी मैम. हाँ, तो let's start. Let's begin our code with hash include studio.h. अगर हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हैं, सी हर बार हर लेक्चर में मैं ये लाइंस आपको दोहराती हूँ और अभी भी बोल रही हूँ कि अगर आप लोग ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हो या तो फिर उबंटू में यूज कर रहे हो, लिनक्स में यूज कर रहे हो, तो यू डोंट नीड टू राइट hash include conio.h and clr.scr and also get ch. But if you are going to use codebox or we can say turbo c, DOSBox, at that time you have to use this conio.h, clr.scr, get ch and that much. ठीक है, हमको ये यूज कहाँ करना है ये आपको पता होना चाहिए. फिर भी मैं ये कोड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर मेंशन कर दूंगी यहाँ पर. ठीक है, तो अगर हम लोग ऑनलाइन यूज कर रहे हैं तो ऑनलाइन में अपन conio.h नहीं यूज करेंगे. लेट्स थिंक कि हम लोग ना टर्बो सी में कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मुझे करना होगा इंक्लूड conio.h. ठीक है, इससे अच्छा अपन कहाँ पर करते हैं? टर्बो सी में ही कर लेते हैं. दैट शुड बी बेटर. ठीक है ना? All of you are okay with it? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now you could see the turbo C. Okay, so Alter F and F5. ठीक है, let's start include stdio.h. अगर कोई मिस्टेक हो
तो यू कैन टेल मी, ठीक है। यार बीच बीच में ना लेक्चर छोड़ के जाया मत करो, नेटवर्क इश्यू होता है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे ना डिस्टरबेंस होता है। उसके बाद आएगा void main, ठीक है। void main इज द बिगिनिंग ऑफ आवर कोड, ठीक है। अभी ना मुझे सिर्फ सिंपल मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ लिखना है, ठीक है। तो देखो मैं कैसे लिखती हूँ। अगर ऐसा कुछ करना है तो मैं यहाँ पर सिर्फ printf का यूज करूंगी। सबसे पहले clr scr मैं कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद printf हेलो दिस इज हेमांगिनी पटेल, वेलकम टू माय चैनल आई लर्न, ठीक है। अगर मुझे ऐसा कुछ लिखना है, अगर ये सारी लाइंस जो है वो ना मुझे कैसे लिखनी है, एक के बाद एक लिखनी है, तो मैं यहाँ पर \n कर दूंगी, थोड़ी स्पेस डाल दूंगी, फिर यहाँ पर \n और इसको ना मुझे पैरा बनाना है, तो मैं यहाँ पर \n एंड \t डाल दूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ get ch, ठीक है। कंपाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, हेलो अल्टर F9 सी, कोई एरर नहीं है। नाउ कंट्रोल F9 सी, आ गया हमारा जो भी हमने लिखा था। तो दिस इज अ प्रोग्राम, ये क्या है, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। मैं इसके ऊपर ना कमेंट में डाल रही हूँ, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट वन सेंटेंस इन सी और प्रिंट वन लाइन, ओके। तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट प्रोग्राम, दैट इज इंटीजर वैल्यू को हमें इंसर्ट कराना है। इसको हम सेव कर देते हैं, अल्टर F S, सेव करके यहाँ पर क्या करेंगे, सी का कोड है इसीलिए .c हमारा एक्सटेंशन आएगा। इसको हम लोग नाम दे रहे हैं, लेट्स सी। सबसे पहले ना मैं क्या कर देती हूँ, मेरा एक फोल्डर क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। मैं नॉर्मल आपको मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर कर रही हूँ। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, जस्ट वेट, हाँ। ओके, अभी दिख रहा है, टर्बो सी दिखा यहाँ पर, एनोट करके दिखाती हूँ। सबसे पहले ना हम लोग माई कंप्यूटर ओपन करेंगे, उसमें हमारी जो सी ड्राइव है, विंडोज की जो ड्राइव है जिसमें हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको ओपन करेंगे।
जब ओपन करेंगे तब यहाँ पर हमें दिखेगा टर्बो सी प्लस प्लस दिख रहा है। हेलो, यस मैम। ठीक है। अभी क्या करेंगे, उसको ना क्लिक करेंगे उसके ऊपर, फिर आ जाएगा ये। अभी यहाँ पर बिन नहीं दिख रहा है, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ, देखो बिन दिखा। हेलो, क्या यस करेंगे? मैम। सबसे पहले क्या करेंगे, टर्बो सी प्लस प्लस में जाएंगे, डिस्क में जाएंगे, उसके बाद टर्बो सी 3 और उसके बाद ये जो बिन फाइल है उसमें जाएंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक फोल्डर बना देंगे हमारे खुद के नाम का। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ HAP। ठीक है, दिस इज माई इनिशियल, सो मैंने इससे लिखा है। अभी हम लोग जाते हैं वहां पर जहां पर हमें प्रोग्राम को सेव करना है। ठीक है, तो हम जाते हैं टर्बो सी में, आ गए। अभी अल्टर FA, सॉरी अल्टर FS। ठीक है, तो हम जस्ट वेट फॉर अ वाइल, यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि फोल्डर बना दिया है, लेकिन जस्ट वेट। जो फोल्डर बनाया है ना वो फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमने ये पहले नहीं बनाया था इसीलिए अभी आ नहीं रहा है। बाद वापस से हम लोग इसको करेंगे, पहले फाइल सेव कर देते हैं। अरे यार, अल्टर FS। ठीक है, हम लोग यहाँ पर C और PR1, ठीक है, हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं PR1, इसका मतलब है प्रैक्टिकल 1। ठीक है, और इसको सेव कर दिया। अभी हम करेंगे अल्टर FN, नया प्रैक्टिकल है जिसमें हमें क्या करना है, यूजर से वैल्यू लेनी है। और वो वैल्यू जो है वो वैल्यू हमारी कैसी होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अवर सेकेंड प्रैक्टिकल। क्या है उसका एम, write a C program to take integer value from user। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही स्ट्रक्चर हमारा आएगा, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main is the beginning of our program। ठीक है, नाउ क्या करना है, हमें यूजर के पास से इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे इंटीजर A। नाउ CLR SCR। अभी हमें यूजर के पास से वैल्यू लेनी है, तो हमें printf एंड scanf दोनों का यूज करना पड़ेगा। सुन रहे हो? हेलो, यस मैम। ठीक है, तो हम Yes, क्या ma'am. करेंगे, सबसे पहले printf enter the value of A is equal to, ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे scanf में क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर डालेंगे। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, कोई बता सकता है क्या? %D। हाँ, %D। और बाहर क्या डालेंगे, $of A। ठीक है, हर एक लाइन का मीनिंग आपको मुझे बताना है। ठीक है, printf \n A is equal to %D।
ठीक है, और यहाँ पर ए। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखती हूँ तो क्या इश्यू होगा वो मैं बताती हूँ पहले, इसके बाद अपन डालेंगे गेट ch। ठीक है, अभी हम इसको रन करके देख लें, चेक कर लो यहाँ पर कोई एरर तो नहीं है, देखो। मैम ए कैपिटल रखा है। हाँ कयो ठीक आए है। आ ना ना कहीं नहीं, कहीं नहीं। चेक करो। कोई एरर लागे છે? चलो, आई थिंक कोई एरर નથી. लेट्स बिगिन. Alter F9 is a compilation. 3 errors are there. क्या हुआ? स्पेलिंग खोटी છે. Hash include. Okay. Now alter F9. No error. अभी हम लोग करेंगे कंट्रोल F9. ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए. तो यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं 9. ठीक है, 9 मैंने डाला. अभी मैं एंटर करूंगी तो कोई आंसर नहीं आएगा, सिर्फ बैक हो जाएगा. तो अगर मैंने ये लाइन को हटा दिया है तो मेरा आंसर जो है वो ए में क्या स्टोर हुआ है वो मुझे पता नहीं चलेगा. ठीक है, तो वो हमें पता करने के लिए हमें ए को ना प्रिंट करना पड़ेगा. तो प्रिंट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद इट. अभी मैं यहाँ पर 10 डाल रही हूँ तो मेरा आंसर जो है वो 10 आ जाएगा यहाँ पर. अंडरस्टैंड? हेलो हेलो, पता चला? यस मैम। ठीक है, तो ये क्या किया था हमने, इंटीजर वैल्यू को लिया है. जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. શું કર્યું આપણે? યુઝર પાસેથી ઇન્ટીજર વેલ્યુ લીધી. નાઉ નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ ઇઝ add two integers entered by the user. So अभी आपको क्या करना है, a एंड b को ऐड करना है. वो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है. हेलो, देखा है कि नहीं? हेलो, यस मैम, देख Yes, लिया है। ma'am. પછી મલ્ટીપ્લિકેશન ઓફ ફ્લોટિંગ નંબર બી જોઈ લીધું છે. यस। ઓકે, હવે આપણે એક નવી વસ્તુ જોવાની છે કે ભાઈ આપણે જે કોઈ પણ કેરેક્ટર એન્ટર કરીશું એની આસ્કી વેલ્યુ શું છે. અમેરિકન સ્ટાન્ડર્ડ વાળી જે વેલ્યુ હોય છે એ વેલ્યુ શું હશે. સી, કમ્પ્યુટરને એ નથી ખબર હોતી કે સી જે છે, સ્મોલ સી અથવા તો સ્મોલ એ છે એ સ્મોલ એ અને બી છે. मतलब કહેવાનો મતલબ શું છે, લેટ મી શેર અ વ્હાઇટ બોર્ડ. અગર મેં ઇન્ટીજર એ લખ્યું છે, બરાબર છે, તો કમ્પ્યુટરને એ નથી ખબર હોતી કે એ શું છે, બરાબર. તો એ ખબર પડવા માટે જ્યારે જ્યારે સી લેંગ્વેજ માર્કેટમાં આવે છે ત્યારે એ ટાઈમ પર એક આસ્કી વેલ્યુ એને આપવામાં આવે છે. ધેટ ઇઝ, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इनपुट, something somewhat like this, right? Let me tell you the full form of this. Just wait for a while.
This is the full form of ASCII, that is American Standard Code for Information Interchange. मतलब जो भी हम लोगों ने कैरेक्टर को इंटरचेंज किया है और 1 to 10 को इंटरचेंज किया है, तो उसकी एक वैल्यू दी हुई है. जैसे स्मॉल ए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो स्मॉल ए की पर्टिकुलर कोई ASCII वैल्यू वहां पर दी होगी. ठीक है. ASCII वैल्यू विल बी स्टार्ट फ्रॉम, just wait. हर एक कैरेक्टर जो होगा हमारा, उसकी पर्टिकुलर एक वैल्यू रहेगी. जैसे हम लोग स्मॉल ए यूज कर रहे हैं, तो स्मॉल ए की पर्टिकुलर कोई वैल्यू होगी, कैपिटल ए की भी एक वैल्यू होगी. ठीक है. जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क. ठीक है. तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू है. कौन सी वैल्यू क्या है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. जस्ट वेट. यार ये सेव नहीं हो रहा है. ओके, आई थिंक मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. दिख रही है स्क्रीन? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. सी, यहाँ पर कैपिटल ए की एक डेसिमल वैल्यू हमें दी हुई है, दैट इज 65. दिख रहा है? यहाँ पर एनोट करके दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से पता चलेगा. सी, 65 इज द आस्की वैल्यू ऑफ ए. देखो यहाँ पर दिख रहा है. हेलो. दिखा? ये एरो आपको कुछ अच्छे से समझाएगा. ठीक है. हमें क्या याद रखना है कि कैपिटल ए जो है उसकी वैल्यू क्या है, 65 है, और बी की 66 है. सो कैपिटल ए अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, अगर मैंने 65 को डिक्लेयर किया है, तो इसका मतलब होगा कि हम जो वैल्यू यूज कर रहे हैं, जो कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, वो है कैपिटल ए. अगर मैंने 69 यूज किया है, तो हमारा जो कैरेक्टर है वो कैपिटल ई रहेगा. अंडरस्टैंड? उसी तरह से स्मॉल ए एंड स्मॉल बी जो है, उसकी भी वैल्यू स्टार्ट होती है. देखो, स्मॉल ए जो है वो स्टार्ट होता है 97 से. ठीक है. इसकी लिंक आपको भेज रही हूँ, आप इससे इमेज ना डाउनलोड कर लेना, जिसकी वजह से आपको ये पूरा जो वैल्यू है वो याद रह जाए. ठीक है. हाँ. दिस इज योर लिंक. ओके, पता चला आज की वैल्यू क्या है. अभी हम लोग देखते हैं उसके रिगार्डिंग कोड. जैसे मैंने लिखा है कैपिटल ए, तो उसका आस्की कोड क्या होगा, उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम लिख रहे हैं. कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ. हमें रेगुलेटर बाजू एक मिनट. हाँ, चलो.
કરવાનું છે આપણે ચેક કરવાનું છે કે આપણે જે કેરેક્ટર નાખ્યો છે એની આસ્કી વેલ્યુ मानसी ने बोलावो मानसी खोल दे है मानसी ए मानसी માનસીના ભાઈ અવાજ બંધ કર બેટા ઓકે સૌથી પહેલા કોડ સ્ટ્રક્ચર બનાવી લઈએ ઇન્ક્લુડ stdio.h मैम स्क्रीन नहीं देखो हाँ एक मिनट शेयर करूँ कोड स्ट्रक्चर बनावी लઉં છું conio.h દેખાયું ઓકે यस मैम now void main is the beginning of our code character ch okay clr scr now printf enter character is equal to ठीक છે ત્યાર પછી scanf character નો ફોર્મેટ સ્પેસિફાયર શું છે %c comma ampersand of c h okay now what we have to do that is printf ASCII value of given character is %c equal to %d okay અને અહીંયા લખીશું ch, ch કેમ આવું કર્યું એ આપણે જોઈએ પહેલા આટલું લખી દઉં get ch આટલું ખબર પડી લઈકી એ હેલો આજે લખ્યું એ સમજ પડી Yes, ma'am. યસ Okay. મેમ નાવ અલ્ટર fn કરીશું કોઈ એરર છે કે નહીં એના માટે કંટ્રોલ fn નાવ લેટ્સ રાઇટ ડાઉન કેપિટલ A ચેક કરો આખી વેલ્યુ આવી આપણે જે જોયેલી એ હેલો Yes, ma'am. ખ્યાલ આવ્યો હવે Yes, ma'am. મેં જે કીધું એ પ્રમાણે દરેક જે કેરેક્ટર આપણે યુઝ કરીએ છીએ સી લેંગ્વેજમાં એને અમેરિકન સ્ટાન્ડર્ડ કોડ ઓર્ગેનાઇઝેશને પર્ટિક્યુલર કોડ આપ્યા છે જેમ કે કેપિટલ એ નો જે કોડ છે ધેટ ઇઝ 65 66 ઇઝ અ ઇનિશિયલ કોડ ફોર કેપિટલ બી અન્ડરસ્ટેન્ડ તો એ જ રીતે દરેક જે બી સાઇન આપણે યુઝ કરીએ છીએ સપોઝ લેટ્સ બિગિન વિથ this is exclamatory માં તો એની વેલ્યુ જે છે એ 33 છે રાઈટ જે કેરેક્ટર આપણે યુઝ કરીશું એ દરેક કેરેક્ટર માટે પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ ડિસાઇડ કરેલી છે અમેરિકન સ્ટાન્ડર્ડ કોડ ઇન્ફોર્મેશન ફોર ઇન્ટરચેન્જ રાઈટ એનું ફૂલ ફોર્મ છે તો એના દ્વારા જે કેરેક્ટરની વેલ્યુ ડિસાઇડ કરેલી છે એ વેલ્યુ ઓલરેડી સી ની અંદર બાય ડિફોલ્ટ સ્ટોર કરેલી છે એટલે જ્યારે પણ આપણે આ રીતનું કોડ લખીશું અહીંયા જે %c છે એ શું ડિક્લેર કરશે એ તમારી કેરેક્ટર વેલ્યુ ડિક્લેર કરશે જે ઓલરેડી તમે શું કરી છે અહીંયા યુઝર પાસેથી લીધી છે તો એ અહીંયા એને પ્રિન્ટ કરશે અને અહીંયા %d જે છે એ તમારી ઇન્ટીજર વેલ્યુ બતાવશે પર્ટિક્યુલર કેરેક્ટરની અન્ડરસ્ટેન્ડ હેલો Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. આટલું ખબર પડી આજે આપણે 4 થી 5 પ્રેક્ટિકલ જોયા એ દરેક પ્રેક્ટિકલ સમજ પડી આગળના પ્રેક્ટિકલ Yes, ma'am. ના જ હતા પણ આ જે પ્રેક્ટિકલ છે ધીસ ઇઝ અ ન્યૂ પ્રેક્ટિકલ ફોર યુ ગાઈઝ
રાઈટ. આસ્કી વેલ્યુ શું છે અને આસ્કી વેલ્યુ નું ફૂલ ફોર્મ શું છે એ પણ તમને ખ્યાલ આવી ગયો. હેલો. Yes, Yes, ma'am. ઓકે, સો આજનું લેક્ચર અહીંયા જ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. સો ઓલમોસ્ટ જે ચાલ્યું છે એ ખ્યાલ આવી ગયો છે બધાને. Yes, ma'am. ઓકે, Yes, ma'am. હું એટેન્ડન્સ લઈ લઉં તમારી.